Hello. Hello. Welcome to all the viewers. This is episode 9 of Trust Asia podcast. And today we are joined by someone who has spent more than 15 years understanding one of the most important yet misunderstood parts of business, that is people and talent. Our guest, Amit Ved, is the founder and lead HR consultant at AVG HR Solutions, a recruitment and HR consulting firm focused on connecting companies with the right talent while helping professionals unlock better career opportunities. Before building his own venture, he worked with organizations like JK Cement, where he served as plant human resource manager for over 8 years, gaining deep, real world experience in recruitment, workforce planning, employee engagement, HR strategy, and industrial relations. What makes his journey especially interesting is the combination of corporate HR leadership and entrepreneurial execution. From handling large scale hiring and executive search mandates to mentoring students on employability, resumes, interviews, LinkedIn positioning, and career growth, he has seen the job market from every angle. Academically, he holds an MBA in HR from Purnima Group of Institutions, along with specialized qualifications in labor law and industrial relations. In today's episode, we'll go beyond textbook HR conversations and explore topics that truly matter for students and young professionals. How hiring actually works behind the scenes, what recruiters notice within seconds, the biggest mistakes MBA students make, how AI is changing recruitment, and what it really takes to build a long-term career in today's competitive environment. We welcome you, sir, on the podcast. Thank you. Sir, I Thank you, would like Raghu. to ask you the question that what is the one expectation companies have from MBA hires that students are not usually prepared for? Okay. The first question है ना? Yes, yes. Okay. Actually, from my experience, I have learned that in theory, generally what happens in colleges, curriculum or syllabus is focused on the theory, framework, case studies, yeah, whatever we can say. So always what happens कि जब कोई student place होता है तो he have the same mentality while Hmm. working. Hmm. Okay, he will take some time, है ना, do thorough research on all the things and later on present it in a perfect way. जैसे हमें Hmm. उसमें कोई marks वगैरह लाने होते हैं Right, तो right. उस तरीके से whereas the reality is कि in while working in the companies जो भी मैनेजर होता है या जो कंसल्टेंट होता है या जो क्लाइंट होता है दे रिक्वायर थिंग्स वेरी अर्जेंटली Hmm. तो देर इज नो टाइम फॉर रिसर्च एंड ऑल तो स्टूडेंट हैव टू लाइक थिंक अबाउट दैट उस Hmm. वे में उन्हें करना चाहिए अब कैसे कर पाएंगे ये चीज इफ यू हैव डन ओनली थ्योरी पार्ट एंड ऑल तो इसका एक ही ऑप्शन है कि यू शुड डू लाइव प्रोजेक्ट्स वाइल डूइंग परसुइंग योर डिग्री आपको काफ़ी सारी इंटर्नशिप करनी चाहिए, है ना? और जब भी कोई अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन रेज़ किया जाए किसी स्टूडेंट को, तो उसे एक पिरामिड होता है, उसे कहते हैं पा पिरामिड प्रिंसिपल के हिसाब से उसे आंसर करना चाहिए। पहले वी शुड आंसर कि चीज़ है या नहीं है, येस और नो, पॉसिबल है Hmm. या नहीं है, देन वी शुड गो इन द लेटर पार्ट। Hmm. वेयरएज़ क्या होता है जब स्टूडेंट्स होते हैं ना तो दे स्टार्ट एक्सप्लेनिंग और लाइक वो कोई डेफिनेशन बताने लगेंगे या वो चीज़ें नो Hmm. पहले हमें थॉट फुली प्रोसेस करना उसे उसे आंसर करना है देन वी हैव टू गो इन दी डिटेल तो दिस इज द वे तो वी हैव टू फोकस लाइक ऑन प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और Hmm. अर्जेंसी कैसे हमें डील करनी है ये चीज़ अगर आप स्टूडेंट स्टार्टिंग में लेके चलेगा ना तो उसे कहीं दिक्कत नहीं आएगी वी कैन मूव टू द नेक्स्ट Understood. Sir, to what extent does college brand still influence the hiring decisions compared to actual capability of a student? So, how much do you think the impact of a branded college like IIM or something have? यस इट इज डेफिनेटली इट इज हम लोग इससे डिनाई नहीं कर सकते बट पैरेलली वी हैव टू थिंक कि ये जो फॉर्मूला है ये इसे हम लोग तीन तरीके से देख सकते हैं टीयर वन टीयर टू और टीयर थ्री या हम इसे देख सकते हैं 30-30-40 के रेशियो में ठीक है टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री के हिसाब से हमें इसे ब्रेक डाउन करना होगा या फिर हम इसे देख सकते हैं 30-30-40 के हिसाब से ऑब्वियसली बिग ब्रांड्स एमएनसीज ये 30% ब्रांड को ही उठाती है Hmm. जब भी आप ये देखोगे द रीजन बीइंग दैट कि जब सीवीज किसी एटीएस सिस्टम में जाएगा या किसी
किसी पोस्ट के अगेंस्ट हम अप्लाई करेंगे, तो वहां पे क्या होता है, टॉप टियर कॉलेजेस लिखे होते हैं या ब्रांड लिखे होते हैं, हम्म तो उसमें क्या है, वो शॉर्ट लिस्ट ऑलरेडी हो जाता है। दूसरी चीज हम्म क्या है, 30% मैंने इसलिए बोला ब्रांड का, क्योंकि ऑब्वियसली जो बिग ब्रांड कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है ना, NAAC डबल A+ ग्रेड की कॉलेजेस है, मैक्सिमम जो बड़ी कंपनीज है, ब्रांड नेम्स है, बिग फोर है, KPMG, डेलॉइट, या जो भी आप MNCs इंडियन की भी बात करें, वो सब लोग वहां जाती है, तो 30% जो चंक होता है उसे वो वहां से हायर कर लेती है। हम्म नाउ, जिसे हम टीयर 1 बोल सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द टीयर 2 एंड टीयर 3? हम्म वहां हमें फॉर्मूला दूसरा लेना पड़ेगा। वहां पे वी हैव टू बिल्ड और कैपेबिलिटी, स्टूडेंट हैव टू बिल्ड देयर कैपेबिलिटी। केवल ब्रांड से काम नहीं चलेगा। आप कई कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे जिन लोगों ने प्रैक्टिकल केसेस किए हैं, जिनका नेटवर्क अच्छा है, थोड़ा रिसर्च है, कंपनी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने IIMs के कंपैरिजन में नरसिंह मोंजी के कैंडिडेट ने क्रैक कर दिया। हम्म तो यहाँ पे हम लोग 30% उस कैपेबिलिटी की बात करें विच ए स्टूडेंट बिल्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग देयर डिग्री, हम्म और बाकी बचता 40%, जो कि 30% आपका टीयर 1 में शिफ्ट हो गया थ्रू कैंपस प्लेसमेंट, 30% ने कैपेबिलिटीज के हिसाब से ले लिया। अब हम्म हम थर्ड जो लास्ट बचा 40% चंक, जो मैक्सिमम चंक जो अनएम्प्लॉयबल मार्केट में घूमता है, हम्म चाहे वो डिग्री, चाहे वो ब्रांड से पढ़ा हो, चाहे वो मिड काइंड ऑफ कॉलेजेस से हो, या फिर वो बहुत छोटी मोटी से किया हो, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है। तो उनको क्या करना चाहिए, उन्हें ये होना चाहिए कि उन्हें लोकल अपने एरिया में ही अप्लाई करना चाहिए, लोकेशन वाइज। जैसे हम्म कुछ वैकेंसीज होती है, अगर वहां पे ये लिखा हुआ है क्राइटेरिया कि गुजराती स्पोकन कैंडिडेट भी रिक्वायर्ड, ठीक या है, तो वहां अगर आपको गुजराती आती है, तो हम्म वहां पे दूसरा कैंडिडेट फिट नहीं होगा, हैविंग दैट ब्रांड प्लस कैपेबिलिटी। तो हम्म फिट इन की बात आ जाती है वहां पे। तो वहां करेक्ट हमें फिर क्या होता है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट ब्रांड एंड वी नेवर डेवलप दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज इन अस, और हमारे पास वो स्किल्स नहीं है, तो हमें फिर क्या करना चाहिए, थोरो रिसर्च करके, हसल करके, उस तरह की जो टीयर 3 टाइप की कंपनीज है या टीयर 2 टाइप की कंपनीज, वहां पे हमें फिट इन देखना चाहिए। तो हम्म दिस इज द बेस्ट बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू सर, मी। what differentiates somebody who is struggling, who adapts quickly in a new job environment, as compared to someone who struggles in adapting to their first job? तो उनमें क्या क्वालिटीज होती है बेसिकली डिफरेंट? डिफरेंट ये होती है कि सबसे बड़ी जो डिफरेंशिएट होता है वो ये होता है कि इनिशियली हमें लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, और हमें जब नए जाते हैं तो हमारे को लिसनिंग कैपेसिटी हमारी बहुत होनी चाहिए। हमें उस दौरान क्या है कि थोड़ा बोलना कम है और सीखना ज़्यादा है। हम्म दूसरी चीज़, हमें क्या होता है कि वाइल्ड गेसेस नहीं करने हैं, हमें बहुत स्पेसिफिक नंबर्स देने होते हैं। हम्म कोई भी चीज़ हम बात करें, तो जैसे उसका सेक्शन का रेफरेंस देना या उस थ्योरी का रेफरेंस देना, वो चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम ज़्यादा इफेक्टिवली वहाँ पे कम्युनिकेट कर पाएंगे। हम्म इसमें क्या होगा कि हमें, सामने वाले को क्या होगा, अदरवाइज सामने वाला हम बोलते ज़्यादा हैं, समझते कम है, तो क्या होगा कि वो देखेगा कि ये हाई मेंटेनेंस का, लो प्रोडक्टिविटी का कैंडिडेट है। हम्म वेरेज हमें क्या होना है कि हमें लो मेंटेनेंस और हाई प्रोडक्टिविटी वाला कैंडिडेट होना है, राइट। क्योंकि उन्हें प्रोडक्टिविटी चाहिए। हाँ तो वो, यू हैव टू लिसन, अंडरस्टैंड, और वो क्या चाह रहे हैं उस चीज को अडॉप्ट करना चाहिए। वो अगर अप्रोच है आपकी, तो इट्स बेटर। sir, have you seen in cases where strong resumes did not translate into strong employees? Like people, like very good things are written on the resume, but the practicality does not meet the, they know what they have mentioned on the resume. हाँ, ऐसा होता है, बहुत बार होता है, और मैक्सिमम केसेस में ऐसा हो जाता है। हमें भी एक ऐसा केस मिला था जहाँ पे हमने एक बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को हायर करने की कोशिश की थी, जिसे फॉरेन से भी कुछ ग्रांट्स मिली थी और फॉरेन से स्कॉलरशिप मिली थी पढ़ने के लिए। बट हम्म वी हैव गिवन देम वन डेटा कि हम्म आपको ये डेटा इसमें से सेग्रीगेट वगैरह करके ना, एंड यू वॉन्ट बिलीव, नेक्स्ट 3 डेज तक कोई आंसर नहीं आया। हम्म इवन हमें ही अप्रोच करना पड़ा वापस कि हम्म अच्छा, इस डेटा पे क्या किया, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। तो हम्म दिक्कत क्या होता है, दिक्कत क्या होती है कि वो एग्जीक्यूशन पार्ट पे कम, और रिसर्च पे जो मैं बता रहा था वो तो ज़्यादा लगा ही देते हैं, बाकी क्या रेस्पॉन्सिव भी नहीं होते। दिक्कत हम्म ये हो जाती है। हम्म रेस्पॉन्सिव होना जरूरी है। आपके मैनेजर ने आपको काम दिया है, तो आपको वापस रिवर्ट खुद से करके लेके जाना है वेल इन टाइम। हम्म वो दिक्कत होती है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे
हम कम्युनिकेशन वगैरह में बहुत लेक कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी किसी सीनियर ने आपको कुछ कम्युनिकेशन किया तो आप रिप्लाई करोगे ओके, यस, नो। कम्युनिकेशन में रिटर्न कम्युनिकेशन भी देखा जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन भी देखा जाता है। इवन कई बार तो जेस्चर पोस्चर्स भी नोट किए जाते हैं, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो हमें ईमेल को ढंग से ड्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। और हमें कंफर्टेबल टास्क नहीं चूज करके हमें क्या होना चाहिए, थोड़ा हसल करके चीज़ों को कंप्लीट करके एग्जीक्यूट करके देना चाहिए। ये अगर आप अप्रोच अपनाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है स्टूडेंट्स के लिए। Sir, when the recruiters are hiring, from an MBA college, like, do they prefer someone with more potential and is a, fresher who has no experience, or do they look for some proven skills like before the MBA they have done this also? Does that matter more, or just showing a potential is more important? पोटेंशियल तो ठीक है, पोटेंशियल इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म। तो दिक्कत क्या होती है कि हमें इसके अंदर क्या होना चाहिए कि मिक्स होना चाहिए। मिक्स अगर हम लोग देख रहे हैं कि एग्जीक्यूशन चीज क्या है और पोटेंशियल क्या है, तो अभी आप क्या करके दे सकते हो। पोटेंशियल वो एक ऐसी चीज होती है जो बहुत लेटर ऑन स्टेज पे हमें पता लगता है। तो हम लोग कुछ स्किल असेसमेंट के थ्रू, कुछ टेस्ट के थ्रू पता लगा लेते हैं। जैसे मान ले आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है, रिटन टेस्ट होते हैं प्लस जेडीज होते हैं प्लस पीआई होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, ये जो पोटेंशियल है ना वो आप थोड़ा बहुत ही पता लगा सकते हो, लेकिन 40% आपको ये भी देखना पड़ेगा कि करंट में क्या एग्जीक्यूट करके दे सकता है ये चीज। Sir, in your experience, how much weight do referrals actually carry, and when do they not work? Like, कितना उसका impact होता है referral का? देखिए, रेफरल का हमेशा से वैल्यू होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई मान लीजिए किसी किसी कंपनी में आपने कोई इंटर्नशिप की है और अब आप पीपीओ मिला हुआ है या आप आपका नहीं हो पाया कैंपस प्लेसमेंट, आप बाहर जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि उस ड्यूरेशन में 2-3 अलग-अलग कंपनी में अपनी डिग्री के दौरान कुछ इंटर्नशिप की थी, या किसी से नेटवर्क आपने लिंक्डइन पे क्रिएट किया हुआ है, किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी इंटर मैनेजमेंट फेस्ट में आप गए थे, वहाँ आप किसी एचआर प्रोफेशनल से मिले। तो रेफरल वहाँ यूज आ जाता है कि जब आप उसका रेफर देते हैं कि अच्छा, या तो मैंने आपके अंडर में ये कोई प्रोजेक्ट किया था, क्योंकि मार्केट बहुत छोटा है। कई बार क्या होता है, क्योंकि आप ग्लोबली अप्लाई नहीं कर रहे हो, या आप मान लीजिए एक सिटी के हो तो आप उसी सिटी में ही ज्यादातर रहता है, और एक सिटी में मान लीजिए 200 300 400 कंपनीज है, तो घूम फिर के आप आइदर ऑन द लिंक्डइन या फिर किसी सेमिनार में तो लोग मिल जाते हैं। तो आपको वो, अगर आप उससे वो रेफरल देते हो कि मैंने आपके अंडर में कोई किया था या आपकी कंपनी में कोई मैंने प्रोजेक्ट किया है, मैंने वहां पे इंटर्नशिप की, तो उसका रोल बहुत काफी होता है। ये चीज है, लेकिन केवल रेफरल वर्क कर जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। रेफरल इनिशियल लेवल पे आपको कोई भी चीज में एंट्री दिलवा सकता है, बट आपके असेसमेंट के टाइम पे, आपके इंटरव्यूज के टाइम पे, टेक्निकल इंटरव्यूज के टाइम पे आपकी जो स्किल है वही मैटर करेगी, क्योंकि उसके बिना आप उससे क्रैक नहीं कर पाएंगे। रेफरल आपको एंट्री दिला सकता है, एग्जिट नहीं दिला सकता उस इंटरव्यू की। वो आपकी ही स्किल्स, नॉलेज और पोटेंशियल कैपेबिलिटी जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं वही आपको वहां पे वो उसको क्रैक करवा पाएंगे। तो रेफरल है इम्पोर्टेंस, बट हमें ये लगता है कि केवल उसी की वजह से हम लोग कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इवन एचआर या जो भी रेफरल देने वाला है वो भी यही कहेगा कि ठीक है, मैं आपका सीवी वहां तक पहुंचा सकता हूँ, लेकिन इसके बाद का काम आपका है क्रैक करने का। Right, right. Sir, like for any like MBA who just graduated and all that, if they're looking for some external placement and they want to negotiate the salary with any HR of a company, so what is the right way to go about such thing? देखिए, नेगोशिएशन में इसमें क्या होता है कि पहली चीज तो ये है कि हम लोग कई बार क्या होता है, सीधा कोट कर दिया जाता है कि माय एक्सपेक्टेशन इज दिस, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि ये चीज देखे बिना कि मैं किस ब्रांड के कॉलेज से आ रहा हूँ या यूनिवर्सिटी मेरी जो सर्टिफाइड है वो क्या है, या मैंने क्या कितने लॉ प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो कैंडिडेट क्या है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस बताते हैं, वेयर एज कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए या स्टूडेंट्स को मार्केट स्टडी करनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, इस पर्टिकुलर रोल के लिए यह सैलरी मार्केट में अभी दी जा रही है। ब्रांड वाले कॉलेज के लिए इतनी, टीयर 2 टाइप की कॉलेज में के लोग इतने, कैंपस से जब लेके जाते हैं तो कितनी होती है।
तो आपको रोल वाइज आपको सैलरी पे डेटा आपको किया होना चाहिए, अकॉर्डिंगली आपको वही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। आप आपने अगर कोई भी चीज है तो आप उसके ऊपर दो तीन चीजें होती है इसमें। अगर मान लीजिए इनिशियली हमें पता लगता है कि हमें कम पे भी लेके जा रहा है लेकिन कंपनी अच्छी है, तो वहां पे हमें ये नोटिस करना होगा कि क्या ये हमें 10% एनुअल ग्रोथ देगा। अब इनिशियली मान लीजिए कि कोई कोई ऑफर हमें मिला, इनिशियली तो वो ठीक मिला है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या क्या उसमें इंसेंटिव पार्ट ज्यादा तो नहीं है, उसमें टारगेट बोनस जो होता है वो ज्यादा तो नहीं है। तो वो प्रॉब्लम कर देती है। आपका वो फैंसी लगेगा लेकिन हमें बड़ी कंपनीज में स्ट्रक्चर्ड होते हैं। अदर बेनिफिट्स पे भी हमें ध्यान देना होगा कि हमारे अदर फ्रिंज बेनिफिट्स क्या है, हमें मेडिकल मिल रहा है नहीं मिल रहा, हमारे करियर के और ऑप्शंस क्या है, या इस कंपनी को चूज करने के बाद मैं यहाँ पे क्या स्किल सीखूंगा, मुझे किस तरह का स्टैंडर्ड मिलेगा जो मुझे आगे लेट करियर जो कि 3 साल 5 साल के बाद डाउन द लाइन मुझे कैसा। अगर मेरे पास दो ऑफर है, एक बहुत छोटी कंपनी से अच्छे पैकेज के साथ और एक ठीक ठीक कंपनी के साथ, तो मैं 10%, 20%, 30% तक नेगोशिएट कर सकता हूँ अगर मुझे ब्रांड अच्छा मिल रहा है, कल्चर अच्छा मिल रहा है और सीखने को ज्यादा अच्छा मिल रहा है, तो हमें वो सेकंड वाला ऑप्शन करना चाहिए चूज। Understood, sir. Sir, how much do you see artificial intelligence acting as a differentiator in hiring decisions? Yeah, only is it a basic expectation that you should know, especially for people who are in non-technical roles? देखिए एआई का ऐसा है कि इफ यू टॉक अबाउट एआई, तो वी आर इन 2026। अगर हम 25 की बात करें, दैट टाइम इट वाज ए डिफरेंशिएटर कि वो नया नया था, उस वक्त लोगों के पास नहीं था। बट इन 2026 एवरी रिक्रूटर और कंपनी कंसिडर एआई एज अ बेसिक स्किल, तो वो सबको आनी ही चाहिए। और इन 2027 व्हाट विल हैपन, कंपनीज विल ट्रीट दिस एज अ हाइजीन फैक्टर कि ये तो यार अंडरस्टूड है। जैसे इफ यू टेक एग्जांपल, 2000 में जब पहली बार कंप्यूटर्स आए थे या 2005 में, जब एवरी कंपनी वाज हायरिंग, एवरी सीनियर एग्जीक्यूटिव वाज हायरिंग अ कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर देम हु नोज अबाउट द कंप्यूटर, या जो चला सकता है, कुछ लिख सकता है। लेटर ऑन व्हाट हैपेंस, धीरे धीरे क्या हुआ कि ये एक बेसिक बन गया कि हर आदमी जो एक व्हाइट कॉलर जॉब में जा रहा है या स्टाफ है, उसे ये कंप्यूटर तो आना ही चाहिए। अब नाउ डेज नोबडी आस्क फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर। इसी तरीके से क्या होगा कि एआई धीरे धीरे वही रूप ले लेगा कि ये सबको आना चाहिए। और नॉन टेक्निकल रोल के लिए भी, टेक्निकल में तो इट इज ओके, बट नॉन टेक्निकल अगर हम जैसे एचआर की ही बात करें, तो जेडीज डिजाइन करने में, जॉब डिस्क्रिप्शंस, इंटरव्यू प्रिपरेशंस का डेटा बनाने में, इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह बनाने में, सीवीज को शॉर्टलिस्ट करने में, रिलीज लिखने में, इस तरीके की कई ऐसी चीजें हैं, सर्वेस करवाने में, इसमें या कई चीजों का डिफरेंशिएट करने में वो एआई का बहुत यूज आता है। क्योंकि हमें बहुत बार एक ही चीज, जैसे लेटर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो रिपीटेटिव टास्क है वो, विच कैन बी डन थ्रू दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो चीज बहुत बेसिक्स हो गई है। नॉन टेक्निकल रोल्स में भी इवन एचआर इसे मांग रहे हैं अब कि ये कम से कम भी 20-30% वेटेज रखने लग गया। अगर ये है तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपने बोल दिया है कि मैं एआई के थ्रू ये चीज कर सकता हूं, तो आप ये मान लीजिए 100 में से 10+ स्कोर आपके सीधा डायरेक्ट एड हो गया, और अगर नहीं तो वो माइनस हो गया। इसका इतना इम्पैक्ट है अभी। Understood, sir. Sir, like when you talk about appraisals, what are the key drivers of getting a good appraisal in your job, especially in your first job? अप्रेजल्स की अगर बात करें तो देखिए क्या होता है, हमें हमेशा एग्जीक्यूशन पे ध्यान दिया जाता है अप्रेजल्स में। कि अभी क्या है कि हम लोग एक बार सिलेक्शन होने के बाद स्टूडेंट्स को लगता है कि कुछ भी ब्रांड चलेगा, रेफरल चलेंगे। लेकिन क्या होता है कि कंपनीज में ऑलवेज दो चीजें देखी जाती है। एक तो लर्निंग एजिलिटी देखी जाती है कैंडिडेट की, और दूसरा चीज देखी जाती है कि ओनरशिप माइंडसेट है या नहीं है कैंडिडेट का। तो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, साल बार बाद 2 साल बाद, आप इनिशियली तो अपनी कम्युनिकेशन से या अपने ब्रांड से, कॉलेज से आप इम्प्रेस कर सकते हो, ये चीजें चल सकती है। लेकिन लेटर ऑन स्टेज में आपकी प्रोडक्टिविटी ही मैटर करेगी, आपको डिलीवर करके ही देना होगा। कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे मान लीजिए जो पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं होते, या जैसे मान लीजिए मैंने किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए किसी कैंडिडेट को चूज किया, लेकिन पता लगा कि वो वहां के लिए बहुत कंफर्टेबल है एंड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कंपनी के 2 प्लांट थे, उसने किसी जगह दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर दिया, तो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल गिर जाएगी। या फिर मान लीजिए कि किसी एक सॉफ्टवेयर को वो जानता था,
कंपनी में जब व्हेन ही एंटर्ड, एसएपी जानता था, लेकिन ओरेकल का सर्टिफिकेशन या ओरेकल उस कंपनी में चलता है तो उसका कॉन्फिडेंस या प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। तो हमें क्या होता है कई बार, या फिर हमारा जॉब रोटेशन कर दिया गया, हमें किसी एक रोल के लिए देखे गए लेकिन किसी और में डाल दिया, या हमें जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जेडीज सिलेक्शन के दौरान दी गई उसके बाद उसमें काफी मिक्सअप कर दिए गए दूसरे रोल्स या दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो परफॉर्मेंस डाउन हो गया। तो आपको क्या है कि एडेप्टेबिलिटी एक होनी चाहिए आपके अंदर, तो वो चीज ही आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल में आगे करके लेके जा सकती है। इनिशियली लेवल पे क्या होता है, दूसरी चीज, हम जब जब स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि इंक्रीमेंट्स होंगे, साल भर के लिए वो लोग ट्रेनी होते हैं तो उन्हें परफॉर्मेंस साइकिल में नहीं लिया जाता। इनिशियल लेवल पे क्या होता है, कंपनीज में बैलेंस स्कोर कार्ड और परफॉर्मेंस प्लान की वजह से बेल कर्व चलता है, तो उसमें जो सीनियर मोस्ट है उससे 5 रेटिंग मिलती है, मिडिल वालों को 4 मिलती है, इनको 3 मिलती है। तो इनिशियली आप चाहे कुछ भी प्रोडक्टिव करके देंगे ना, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी कि मैं 5 रेटिंग ले लूँ, बट अदर फैक्टर्स भी हमें अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे कि इनिशियल साल 2 साल के लिए आपको उसी में रखा जाता है। तो इनिशियल क्या ये सजेशन होती है कि 3 साल तक आप अपने लर्निंग पे ही फोकस कीजिए, स्किल एनहेंस कीजिए, 3 to 5 ईयर तक आप थोड़ा स्किल प्लस सैलरी मिक्स के हिसाब से आप चेंज लीजिए अगर आपको 1-2 चेंजेस भी लेने हैं। और डाउन द लाइन आप 5 से 8 साल 10 साल के अंदर यू शुड बी फोकस्ड ऑन सैलरी पार्ट ओनली, कि आपका ग्रोथ क्या है, क्योंकि आप उस जोन में जा चुके हो। तो ये एक रूपरेखा होनी चाहिए इस चीज की। So that was a very nice example that you gave. I wanted to ask कि कोई new joiner है, how does he navigate office politics if they ever encounter it, in their early stage of career? ऐसा होता है, तो इसमें क्या होता है, 2-3 सजेशंस हैं। एक तो हमें ग्रुपिंग नहीं करनी है स्टार्टिंग में जाके। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट जिसे हम बोलते हैं, तो वी हैव टू बी न्यूट्रल, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई भी अपने डिपार्टमेंट के बारे में या कहीं भी कुछ कहे तो आपको ये अप्रोच होनी चाहिए, आपको गोसिप करने से बचना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि आई डोंट नो, और आई विल कम टू यू आफ्टर डिस्कसिंग विद माय मैनेजर। अदरवाइज क्या होता है, वो ऑफिस पॉलिटिक्स में आप चले जाते हो ना, तो उसमें दिक्कत। इसके अलावा आपको क्या, आपको स्किल्ड होना चाहिए। जब आप स्किल्ड नहीं दिखते हो, आप खाली दिखते हो, आपके पास कोई विजन नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्टिव के साथ आप काम नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, गॉसिप और ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस जाते हो। जबकि ये सब फैक्टर तब नहीं लगते जब आप बहुत अच्छे परफॉर्मर बन जाते हो, बहुत अच्छे एग्जीक्यूटर बन जाते हो। तो आप लोग, आपकी गॉसिप्स, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी ग्रुपिंग को भी अवॉइड कर दिया जाता है, क्योंकि इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्टिविटी अल्टीमेट मैटर्स। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम लोग गॉसिप्स करें या हम ग्रुपिंग कर लें, और चीजें, हमें न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए, हमें प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए, अपने स्किल्स को एनहेंस करने पे ध्यान देना चाहिए, और ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। या फिर जैसे मान लीजिए मैनेजर ने, इनिशियली लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैनेजर ने कोई भी बात बोली और आप उसका ओबीडियंस नहीं कर रहे, या आप उसे नहीं मान रहे हैं उसके को, तो ये चीजें क्या लेटर स्टेज में आपको बहुत परेशानी देगी। इनिशियली तो क्या मैनेजमेंट का 30 डेज 60 डेज 90 डेज इंटर्न्स पे ध्यान होता है, लेकिन एक बार जब वो नॉर्मल एम्प्लॉइज बन जाते हैं तो फिर क्या करते हैं वो लोग, अपना बदला लेने टाइप में, या उसको रेटिंग के ऊपर उसका गुस्सा निकालते हैं, प्रमोशन पे निकालते हैं। या मान लीजिए किसी ने पूछा कि किसी और प्रोजेक्ट के लिए हमें एक कैंडिडेट चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप गॉसिप ज्यादा करते हो, आप इश्यूज क्रिएट करते हो, तो सबसे पहले आप ही को ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपकी स्किल्स कैपेबिलिटीज वहीं रह जाती है, और आपकी जो अदर एट्रीब्यूट्स हैं वो इफेक्ट कर जाते हैं। तो इस चीजों से बहुत टैक्टिकली डील करना आना चाहिए कैंडिडेट को। So my last question to you is, if like you could give one advice to your younger self, like who would have just joined office, what would be that one lesson that you learned like throughout your journey you would like to give your younger self? अगर मैं अपनी खुद की जर्नी से ये बताऊं, व्हेन आई जॉइंड कंपनीज, तो एक दो चीजें जो गलती हम लोगों ने की, एक तो ये पार्ट होता है कि हम लोग, जैसे मान लीजिए कैंपस में ही नहीं ले पाते, तो काफी लोग होपलेस हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, आउट प्लेसमेंट अगर आपको लेना है, तो आउट प्लेसमेंट में ये है कि आपको बहुत सारे जॉब पोर्टल्स के बारे में स्टडी करनी होनी चाहिए, बहुत सारे लिंक्डइन कनेक्शंस आपको बनाने चाहिए, आपको सेमिनार्स में, इनमें जाने से, ये चीजें ऐसी जिसमें स्टूडेंट को कोई भी नहीं रोकता है। मुझे किसी ने ब्रिज नहीं लगा रखा। अब मान लीजिए मैं किसी कंपनी में सिलेक्शन हो भी गया, दिक्कत क्या होती है कि इनिशियल फेज पे हम लोग क्या करते हैं कि डेली जो हमारी एडमिन एक्टिविटीज है उसमें हम लोग
इंगेज हो जाते हैं, या हमें इजी काम को जल्दी करना पसंद होता है। हम्म फ्रॉम माय कॉर्पोरेट लाइफ ना, अगर मुझे एक सबसे बड़ा रिग्रेट अगर रहे तो मैं बताता हूँ आपको कि कम से कम भी 8 साल की अगर जेके की करनी जर्नी में बताऊं, उसमें स्टार्टिंग के 2 3 3 साल तक मैं कभी भी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव पे काम नहीं कर पाया। हम्म मुझे जस्ट जो बोला गया मैंने वो कर लिया। कभी हम्म अपनी बुकिश नॉलेज जो थी, अपने जो थ्योरीज थी, उनको कभी भी उनसे रिलेट करने की कोशिश नहीं करी। हम्म या मान लीजिए मुझे ये बोला गया कि रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, तो जो सॉफ्ट पार्ट एचआर था मैं हम्म उसके तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड था। वाइल हम्म जो जैसे मान लीजिए टाइम ऑफिस है, पेरोल है, हम्म या एडमिन एक्टिविटीज है, उनमें मेरा हम्म कम था। लेकिन जब लेटर ऑन स्टेज में हम्म मुझे सब चीजें दी गई, हम्म तो आई गेट टू नो कि सबसे बेस्ट ये होता है कि आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपका हम्म ऑपरेशन मेंटेनेंस है, प्रोडक्शन है, हम्म क्वालिटी है, तो आपको सबका थोड़ा 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 नॉलेज होना चाहिए, और हम्म इंटर डिपार्टमेंटल वर्क कैसे होता है, हम्म मेरा काम दूसरे आगे या पीछे कैसे इफेक्ट कर रहा है, मेरा हम्म डिपार्टमेंट में मेरी क्या वैल्यू है वर्क की, मैं अगर हम्म वो काम नहीं करके दूंगा तो वो कैसे इम्पैक्ट करेगा मेरे डिपार्टमेंट को एज अ होल, हम्म दूसरे डिपार्टमेंट को कैसे चीजें वो करेगी, हम्म या फिर दूसरे डिपार्टमेंट मुझे किस तरीके से रेस्पेक्ट से देख रहे हैं। मुझे एचआर को एक बहुत ऐसा समझा जाता है कि इसे सब कुछ नॉलेज होगा, सब कुछ पता होगा, बहुत मेच्योर होगा। वेर हम्म एज मुझे लगता है कि उस वक्त मैं तो बहुत कमजोर था। तो कई हम्म बार क्या होता है, हमें खुद की कैपेबिलिटीज भी पता नहीं होता है। तो हाँ हमें जो फीडबैक मिलते हैं, हमें हमें जिस तरीके से रेस्पेक्ट मिलता है, तो इनिशियली आपसे कोई कोऑपरेट नहीं करेगा। आपको कोई, आप जाओगे तो हो सकता है कि आपको चेयर भी ऑफर ना करे, हम्म आपको आपसे डील ना करे, आपको शो फ्लोर पे देख के उसे बड़ा इरिटेशन हो। हम्म लेकिन धीरे धीरे आप पीपल्स मैनेजर बनना पड़ेगा, आपको लाइन हम्म मैनेजर्स से डील करनी पड़ेगी, अपने सबऑर्डिनेट जो अपने नीचे काम करते हैं, अपने पीयर। 360 डिग्री आपको देखना पड़ेगा कि मेरा सीनियर भी मुझसे रहे। कई बार क्या होता है कि मैं अपने नीचे वाले को दबाने के लिए अपने दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ इश्यूज क्रिएट करके अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल को बढ़ाने के लिए उनको गिरा दिया। लेकिन हम्म लेटर ऑन आपको पता लगता है कि आप पहले यू वर मैनेजिंग योर सेल्फ ओनली, हम्म नाउ यू हैव टू मैनेज अदर्स हम्म एट एट द मैनेजरियल लेवल। एट द मैनेजरियल लेवल ना, 5 10 50 ईयर्स के बाद, 5 to 8 ईयर्स के बाद यू हैव टू मैनेज मैनेजर्स। हम्म तो वो पुरानी जो चीजें होती है वो सब निकल के आती है बाद में। हम्म तो हमारी जो अप्रोच होती है वो स्टार्टिंग से 360 एंगल होना चाहिए, और हमें अदर फैक्टर्स को देखते हुए चीजें करनी चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो आप स्टार्टिंग से ही वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो जो हम्म लेटर स्टेज में आपको मिलती है। हम्म तो एक कर्व होता है कि आप जैसे ये कर्व है, हम्म स्टेज में थोड़े टाइम जाके फिर वो यूं टिल्ट हो जाता है, और हम्म बाद में लाइफ करियर यूं चलता है। हम्म तो जो आपका एस्टेब्लिश वाला फेज होता है, हम्म उसमें थोड़ा सा हम लोग जब ग्रोथ कर रहे होते हैं तो हम अदर फैक्टर को भूल जाते हैं। लेकिन हम्म लेटर ऑन यू रियलाइज कि वो गलती हो गई, तो आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक व्यवहार रखिए, वर्कर से, स्टाफ से, अपने ऑफिस स्टाफ से, अपने मैनेजर से, पीयर से, सबसे अच्छे से रिलेशनशिप बना के आगे बढ़िए और रेटिंग लीजिए। अगर लोग आपके बारे में भी अच्छा बोल रहे हैं तो फिर वो बेस्ट आपका सक्सेस है। अदरवाइज आप सक्सेस हो गए, लोग आपको गाली दे रहे हैं या आपसे खुश नहीं है, हम्म आप उनके साथ नहीं है, तो फिर वो कॉर्पोरेट लाइफ बड़ी इरिटेटिव हो जाती है एक टाइम पे। Thank you so much for your time, Amit sir, and have a great day ahead as well. थैंक यू।